بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس مضمون کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا تجربہ۔ یہ میری زندگی کے کچھ حقائق ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار جو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا خالق ہے، اس عظیم پروردگار نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ قدم قدم پر بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس طرح ایک ماں اپنے اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے جس نے ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس تحریر کو لکھنے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر کے کچھ لوگ اگرچہ وہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے، وہ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے ہمیں مزاروں پر جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے کسی سفارش اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور خاص طور پر جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے وسیلے کی درخواست کرنا اور ان کی قبروں پر آ کر دعا مانگنا انتہائی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اس کے سوا اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ آئیے اب ہم ان واقعات کی طرف آتے ہیں جن میں نے اپنے مشکلات میں جب جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس نے معجزاتی طور پر میری دعا کو قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ میں خود حیران ہو گئی۔ الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب وہ 8ویں 9ویں کا طالب علم تھا، اس نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے چکر آتا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور ہم نے لاہور کے ایک معروف ڈاکٹر سے وقت لیا اور اس کے چیک اپ کے لیے اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ خدا نخواستہ ابراہیم کو ایپیلیپسی یعنی مرگی ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور شہزاد بھی بہت پریشان تھے۔ ہم نے کسی دوسرے ڈاکٹر سے رائے لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ڈاکٹر نے بھی یہی بات کہی اور اس نے اس بیماری کی دوا بھی شروع کر دی۔ اس طرح کہ دواؤں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مریض سارا دن سویا رہتا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں جب ابراہیم کو اس حالت میں دیکھتی کہ وہ زیادہ تر وقت سویا رہتا ہے، اسکول بھی نہیں جا سکتا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے ایک ہی اولاد دی ہے اور اس کو بھی ایسی بیماری دی کہ جس کا نام بھی کوئی ماں سن نہیں سکتی۔ شہزاد صاحب نے اپنی بہن سے بات کی جو کینیڈا میں رہتی ہے اور وہاں وہ سائیکالوجسٹ ہے۔ سعدیہ نے شہزاد سے کہا کہ آپ ابراہیم کا MRI کرا کر بھیجیں۔ میں اپنی دوست عامرہ رانا جو انکالوجسٹ ہے اس سے رائے لیتی ہوں۔ وہ چونکہ ڈاکٹر ہے تو ہر فیلڈ کے ڈاکٹر اس کے واقف ہیں، وہ سب سے مشورہ کر کے ہمیں بتائے گی۔ ہمارے گھر کے قریب نیشنل ہسپتال ہے، وہاں ہم نے MRI کے لیے وقت لیا۔ مقررہ دن ہم ابراہیم کو لے کر نیشنل ہسپتال MRI کے لیے پہنچ گئے۔ جتنی دیر MRI ہوتا رہا، میں اس عظیم بادشاہ رحمان رحیم قدرت رکھنے والے رب کے سامنے اپنی بے حیثیتی کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گری رہی۔ میرے دماغ میں اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں بالکل ذرہ بے حیثیت ہوں اور بس سب کچھ تو ہی تو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا کی دعا لم اکن بدعائی کا ربی شقیہ پڑھتی جا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ میرے مولا، میں نے جب جب تجھ کو پکارا میں مایوس نہیں ہوا۔ MRI مکمل ہو گیا، ہم نے اس کی CD
कनाडा भेज दी। डॉक्टर आमिरा राना ने इस MRI को पढ़कर हमें बताया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इब्राहिम को अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं। आमिरा राना की ये बात सुनकर मेरा वजूद खुशी से लरसने लगा। है परवरदिगार, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं जो तेरे शान शान हो। मेरे दिल में ये एहसास था कि ए परवरदिगार, कौन कहता है कि तुझसे रब्ता करने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत है, तू तो मेरी हर पुकार को सुनता है। मैं सजदा शुक्र अदा करने के लिए एक मर्तबा फिर इसके दरबार में गिर गई। ये अजीम परवरदिगार का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान था। ये इस परवरदिगार की ऐसी इनायत थी कि जिसका एहसास एक माँ को ही हो सकता है। आज मेरा बेटा इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो चुका है। इब्राहिम से मुतल्लक एक और वाक़या मेरे जहन में है जो कि अपने गहरे नकूश छोड़ गया, जिसे याद करके मैं ये महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला तो बस मेरे दाएं बाएं हैं। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। इस वाक़े ने अल्लाह ताला के वजूद और अपने बंदों के लिए इसकी कबूलियत पर इत्मीनान ने मेरे यकीन और इत्मीनान को इतना बढ़ा दिया कि अब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को रद्द करेंगे या दुआ की कबूलियत के लिए मुझे किसी और के दरवाज़े को खटखटाना पड़ेगा। मेरी दुआ की कबूलियत में अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक देर हो सकती है, लेकिन दुआ की शिनवाई ज़रूर होगी। इब्राहिम से मुतल्लिक कुछ और भी वाक़यात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला पर मेरे एतमाद और यकीन बहुत बढ़ गया। अल्लाह ताला अगरचे हमें नज़र नहीं आता, मगर कायनात का चप्पा चप्पा इसके वजूद की गवाही देता है। मेरा वजूद, मेरी ज़िंदगी, ये ज़मीन, ये आसमान, ये बारिश, धूप, पहाड़, नदी, नाले, समंदर, सूरज, चाँद, सितारे और इन सब के अंदर नज़्म व ज़ब्त इस अल्लाह के वजूद पर गवाही देता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। एक घर किसी मालिक के बगैर नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात जिसका ये मामूली सा हिस्सा हमारे इल्म में है, वो किसी हस्ती के बगैर कैसे चल सकती है। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे बेटे के स्कूल में टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे थे। टेनिस हमारे घर का पसंदीदा खेल है। इब्राहिम को भी ये खेल बहुत पसंद है। इब्राहिम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। माशाअल्लाह वो मैच जीतते जीतते फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मैच देखने के लिए स्कूल की इंतज़ामिया ने दोनों बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया। वो लड़का जो इब्राहिम के मद्दे मुकाबिल था, वो गुज़श्ता 5 साल से टेनिस का चैम्पियन था। अगर वो ये मैच जीत लेता तो एचिसन कॉलेज में एक रिकॉर्ड होता। वो लड़का अपने कद काठ में इब्राहिम से बहुत लंबा और चौड़ा था। शहजाद ने इसे देखते ही अपनी राय दे दी कि इब्राहिम इससे कभी भी नहीं जीत सकता। मेरा तरीका है कि मैं हमेशा मुस्बत रहती हूँ, मुझे मनफी सोच बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे शहजाद का यह तबसरा बिल्कुल पसंद ना आया। मैंने शहजाद से कहा कि आप मुझे मैच की सूरत हाल बताते जाएं। मैच शुरू हुआ। इब्राहिम सख्त घबराया हुआ था। बचपन से ही इसे हारना पसंद नहीं था। बहरहाल मैच शुरू हुआ। वो लड़का बहुत पुरएतमाद था और बहुत अच्छा खेल रहा था। शहजाद साहब मुस्तकिल तबसरा किए जा रहे थे, जिससे मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। वो हर थोड़ी देर के बाद मुझे हिलाकर कहते कि ये बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, यही जीतेगा। इब्राहिम के जीतने का कोई इम्कान नहीं। मैं तो बस अपनी दुआओं में मसरूफ़ थी। मुझे टेनिस की अलिफ बे का भी पता नहीं था। मैच को तो मैं देख नहीं रही थी, बस दुआ ही किए जा रही थी कि मेरे अल्लाह इब्राहिम को जिता दे। इब्राहिम शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इब्राहिम को दुखी नहीं देख सकती। पहला सेट इब्राहिम हार गया। मैंने आंख उठाकर देखा, इब्राहिम सख्त परेशान था। एक माँ अपने बेटे को कभी ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मेरी दुआओं में इजाफा हो गया। दूसरा सेट शुरू हुआ। वो लड़का बड़ी महारत के साथ खेल रहा था और शहजाद की कमेंट्री भी जारी थी। मैं अपने रब से और करीब हो गई और कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मुझे अपने बेटे की फतह चाहिए और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मैच ख़त्म होने के करीब था। अब पॉइंट्स बराबर जा रहे थे। शहजाद इब्राहिम की हार को तस्लीम कर चुके थे, लेकिन मैं एक माँ तस्लीम नहीं कर सकती थी। अब इब्राहिम के पॉइंट्स बढ़ने लगे। मुकाबला सख्त था। दोनों जीतने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि खेलते खेलते ये लड़का गिर गया और एक शोर सा बुलंद हुआ। ओहो! मैंने नज़र उठाकर देखा, वो लड़का ज़मीन पर गिरा हुआ था और कोच इसे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। इस लड़के का जो इब्राहिम के साथ मैच खेल रहा था, इसकी टांग का मसल पुल हो गया और वो तकलीफ से बिलबिला उठा।
वो आगे मैच खेलने की पोजीशन में नहीं था। इब्राहिम मैच जीत चुका था। साबिका चैंपियन का शिकस्त और तकलीफ से बुरा हाल था। मैंने अपने बच्चे की फतह तो मांगी थी, लेकिन इस बच्चे की तकलीफ को देखकर मेरी ममता को भी तकलीफ हो रही थी। मैंने इस लड़के के करीब जाकर इसे प्यार किया और तसल्ली दी। अल्लाह को पुकारना रायगा नहीं जाता। इसमें थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इसके बंदे को मुझ पर कितना एतमाद है और इसके दिल में कितनी खोट है। अपने किसी मज़मून में मैं इंशाअल्लाह पैगंबरों के वाक़यात भी बयान करूँगी, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने भी अपनी हर मुसीबत में अल्लाह ताला को ही पुकारा और अल्लाह ताला अपनी इनकी दुआओं को कबूल किया। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि कभी भी हिम्मत ना हारें, अपने रब से लौ लगाएं, हर मौका पर इसी को पुकारें। दुआ की कबूलियत के लिए कभी किसी कब्र या मज़ार पर ना जाएं। जल्द या बदेर आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला को नहीं पसंद कि इसके बंदे इसके अलावा किसी और को पुकारें। मेरी ज़िंदगी में ये वाक़यात किसी मोजज़ात से कम नहीं। कभी कभी दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला आज़माना चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे ऊपर एतमाद रखता है या नहीं। अल्लाह ताला की बहुत सी सिफ़ात में से 2 सिफ़ात समीउन और बसीरुन है, यानी वो अपने बंदों को देख भी रहा है और उनकी बातें और दुआएं सुन भी रहा है। ईसाई मज़हब में ये तसव्वुर पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को बनाया और 7वें दिन आराम करने के लिए अपने अर्श पर जा बैठा। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। वो पूरी तवज्जो के साथ अपनी कायनात के अमूर सल्तनत को संभाल रहा है। सूरह बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी का तर्जुमा है कि उस दिन मामला सिर्फ अल्लाह ताला से होगा। अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, जिंदा और सबको कायम रखने वाला, ना उसको ऊँग आती है और ना ही नींद। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके हुजूर में किसी की सिफारिश करे। लोगों के आगे और पीछे हर चीज़ से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। लोग उसके इल्म में से किसी चीज़ को भी अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते मगर जितना अल्लाह चाहे। उसकी बादशाहत ज़मीन और आसमानों पर छाई हुई है और उसकी हिफाजत इस पर ज़रा भी गरा नहीं होती। वो अल्लाह बुलंद बाला है, बड़ी अज़मत वाला परवरदिगार।